आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। Day, Vrindavan Hospital, Vidyaranya Hospital and CEG Hospital Mysore has come together with BBISM Milli Hospital situated here on Bangalore Road under the guidance of Mr. Iqbal with the sole intention of providing a pure, dedicated COVID-19 hospital. As you all know that there is an ongoing pandemic right now in Mysore city and every day we are seeing about 150 cases. So this only reiterates the need for a dedicated COVID hospital because apart from keeping patients with cold and cough in the ward, there are many other illnesses like surgeries, deliveries, hemodialysis, where we cannot mingle them with regular patients. We run a hospital, we also run other hospitals like Vrindavan Hospital, Vidyaranya Hospital, CEG Hospital, which will be doing pure non-COVID work. So we cannot cater to both sections of people in the same campus. So with that in mind, we had a couple of rounds of discussions, and today we reached this stage where we have successfully opened BBISM Milli Hospital, which is going to be functional from today. For as of now, it's going to be a 50-bed hospital which can be expanded up to 75. We will have 35 general, semi-special and deluxe wards. We will have 6-bed ICU and 10-bed HDU, high dependency unit. This bed, as per the government's directions, 50% of the beds will be shared with Karnataka state government, that is Ayushman Bharat Aarogya Karnataka scheme, wherein 50%, that is 25% of the patients will be received from the government referral system and rest of it will be private walk-in patients. Patients will receive treatment either in the ward or in the high dependency unit or in the ICU based on international guidelines that have been formulated after discussions with a panel of doctors. And we will follow all strict guidelines. We have ensured that we have highest level of disinfection to make sure that healthcare personnel are not don't develop a secondary infection because while treating patients, which is the biggest problem now because it's very hard to replace consultants. So with that being said, I hand over the floor to Dr. Ravindranath. He will brief you further regarding the operations. Sir, but what was the response from MP today? MP has always been very encouraging regarding this. He is also area in charge of NR. So from the beginning itself, we kept him. He is always known about this plan and he always supported us. And he has known that whatever help from this side, from the district administration side, is glad to offer it. He's a very young, dynamic guy who understands the actual problem today. So we are very comfortable working with him. We have a good working relationship. Okay. Good morning. Dr. Mr. Iqbal, the president of this trust, so he's been a good friend and a philanthropist, as we all know. And when the situation of COVID started becoming serious, so as Dr. Ayappa mentioned, so we were looking for a hospital to make it into a purely COVID hospital to treat only corona positive patients. So in that context, the first name which sprang to my mind was Mr. Iqbal sir. So immediately when I called him, he agreed immediately and gave all facilities and asked us to start COVID treatment here. And as I was a part of the trust as well, so I knew the situation here. And we thought we functionalized the operation theatre, hemodialysis unit, ICUs, and they had a fantastic ICU area here. And we increased the number of beds, and within a week or so, and then sorted that it became functional. And I'm very happy that today, with the greetings of Mr. Sima, so we are able to inaugurate this, and I'm sure Iqbal sir is very happy about what's happening, and I'm sure that is going to help the community because as we are seeing more cases in the neighboring community in this area, so I'm sure that this will be of great help to the community. Thank you. I'm a senior journalist from Bangalore, so anyhow I got into the COVID positively just about 14 days earlier, got admitted and got it cleared. Since I was in the public life a lot, it's just a confidence, keeping all your awareness, as Mr. Ayappa and the doctors have said, keep yourself self-distancing, keeping yourself all with a mask and keeping yourself away with people with a distance. But I was really, very much enthused with Mr. Iqbal when he said the Mysore people are suffering with the COVID issue, which it was a big challenging ask, since it is just more than a national disaster. So I really felt that this is genuinely cause, as I have been myself a patient, came out positively and moving around.
So I felt this is a very challenging, so I had to drop him as a good friend from the past years, who's doing services from past many years, even in Mandya as well as in Mysore. So I will give him one of the best of luck for the common people in Mysore to make things things goes in a very systematic way and well systematic and infrastructure where the doctors have come here merged with BB Aisha. So I wish him all the best of it, and I have to appreciate the MP as well as even Tanvir also, who could not make it because due to or even Tanvir and other people had to make it. I think he should make it any time. So I have to appreciate that. And thanks, I have to say that this Yediyurappa government is doing a wonderful job. Let us not go with what comments of everything goes on. The comments is always there, but the people who are in the front line, people like doctors, nurses, Asha, they're doing a wonderful job. I might have gone to the private institute, but the system is the same thing. But I feel you should have a confidence, fearless. Government has given a lot of initiatives. They have opened a lot of wards from BBMP and the local and everything. You go, get tested fearlessly. Come out, be positive. It is even a home quarantine has been carried on, which has been doing a wonderful job. I think by coming 5-6 months, a lot of people say, even a lot of the doctors, everybody said that the vaccine may come. But the more than the vaccine, the confidence which has been created by our doctors, nurses, the government, the local politicians, everybody, we have to take the confidence. People should come out. If people start sitting in the house and fearing, hopes so more than COVID, there is more heart attack death rate more than the COVID cases, as Mr. Manjunath, the MD of Jayadeva was saying. So make sure that give them confidence, make them confident that they can come and face and they can overcome the life. It's nothing else. And I'm very again thankful for Dayapal and the team of the people here, the doctors who are working to start with the COVID system. It's a great job. Thank you. मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, लेकिन एक चीज़ का दुख जरूर है कि हमारे तनवीर सेठ साहब नहीं थे। अगर उनके रहते तो और भी अच्छी खुशी होती थी। और मैं कई लोगों को इन्वाइट किया था, शायद कोविड की वजह से शायद नहीं है, कोई बहुत लोग बिजी भी होंगे शायद। तो पुराने प्रेसिडेंट चांद साहब और जितने ट्रस्टी पुराने ट्रस्टियां थे उनका सब बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रताप सिंह साहब आने के बाद में हमको लॉट ऑफ इंक्रीमेंट मिला। और मैसूर में अपने डीसी है, पुलिस कमिश्नर है, अपने एनआर वाले के पुलिस वाले हैं और जितने भी मतलब अथॉरिटीज हैं हम लोग को फुल सपोर्ट किए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इस मैसूर में हम किसी लिए से हॉस्पिटल एक पूरी हॉस्पिटल कोविड के बनाएं, इसमें हर चीज़ की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम डिलीवरी से लेके बच्चों का ट्रीटमेंट से लेके और ऑपरेशन से लेके आईसीयू का सब ट्रीटमेंट है यहाँ पे। ये सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है, एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए है, जो इमरजेंसी में फाइनल स्टेज में रहते हैं उनके लिए है। यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं मैसूर के, आप लोग हम लोग को फुल सपोर्ट कीजिए, डॉक्टर को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों का मॉरल बढ़ाइए, हमको काम करने के लिए हिम्मत दिलाइए। हम लोगों को मतलब कोई तकलीफ अगर हुई तो सामने आके खड़ी है। इसमें इंसिडेंट्स भी होने वाले हैं, कोई ना कोई हादसात भी होने वाले हैं। अगर अल्लाह नहीं करे एक भी हो यहाँ पे तो हम विश करते हैं, बट खुदा ना खास्ता कोई ना कोई एक आधा हुआ तो उसमें तो कुछ रहेगा तो आप सामने आके खड़िए। तो डॉक्टरों की हिम्मत बढ़ेगी, डॉक्टर लोग हिम्मत से काम करेंगे। अगर डॉक्टरों की मॉरल डाउन कर देंगे तो फिर काम करना मुश्किल रहेगा। आप थोड़ा देख लेना सब इस चीज़ों को। मैसूर वाले से मेरे खास कर गुजारिश है और मोहल्ले वाले से गुजारिश है और डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि हम लोग को फुल सपोर्ट कीजिए। हॉस्पिटल स्टार्ट करना मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जो कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट करना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में है और हम लोगों को गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट से भी ऑर्डर्स है कि बीबी आयशा मतलब कोविड हॉस्पिटल के सेलेक्ट किए गए बोल के उनके भी डायरेक्शन से, डीसी साहब का डायरेक्शन से, उनके डायरेक्शन के बगैर हम लोग हाथ में ठिकाना नहीं करते। और एनआर मोहल्ले के अपना ये प्रताप सिंह साहब एमपी जो है तो वो यहाँ के इंचार्ज है एनआर मोहल्ला के, उनका परमिशन है, उनका सपोर्ट था, हर कोई हम लोग को सपोर्ट किए।
तनवीर सेठ साहब भी सपोर्ट किया हम लोगों को, उनने अपने अयूब साहब सपोर्ट किया हमको, चांद साहब सपोर्ट किए, और कोई उमर साहब है, बहुत लोग अपने यहाँ के जितना अपने एडवोकेट मंजूर है वो भी बहुत सपोर्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को चारों तरफ से सपोर्ट है। ये कोई मिसचीफ है करना नहीं चाहते, तो तकलीफ देना चाहते हैं कि वो कोर्ट का कोई केस है, स्टेटस को है, ये है बोल के स्टेटस को है, मतलब प्रॉपर्टी हम लोग किसी को बेच नहीं रहे, हम प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल की एक्टिविटी कर रहे हैं, हॉस्पिटल का काम करने का हमको पूरा रेट है। इसके लिए वो लोग मतलब समझे नहीं वो लोग क्या स्टार्ट है, उनको समझ में नहीं आया कि कोई भड़का दिया, उनकी किसी के भड़का में कि बेचारे वो इनोसेंट आदमी लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लोग उनके पास शायद मुझे मैं सुना कि लोग उनके पास से पैसा वगैरह लेके सब उनको इनकरेज कर रहे, बेचारे परेशान है वो मुतौलिया से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बहुत इनोसेंट है। अभी इनको भाई 14 लाख भाड़ा भी दिया, इनको पैसा भी दिया इनको। अब इसके बावजूद अगर इनको कोई तकलीफ है, मेरे पास डायरेक्ट अगर आए होते तो शायद इनका मामला साल हो जाता था। ये लोगों की उनकी इनके बहकावे में आ गए, लोगों की बातों में आ गई है, और कोई बीच में थोड़े 2-3 ब्रोकर्स वगैरह है, अनवांटेडली उनसे पैसा लेके बेचारों को एक्सट्रैक्ट करके उनको आपस में फैमिली में झगड़े करा दिए, उनके सब कुछ हो रहा, लेकिन ब्लेम पूरा मेरे पे डालना शुरू किया लोग कि मैं मेरी वजह से हो रहा बोल के, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर मैं शायद अगर बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सामने अगर बैठ के क्लैरिफाई किए होते हमको कोई झंझट नहीं होता था। अभी भी मैं आने दो, ये मेरे साथ में बैठ के बात करते हैं तो इंशाल्लाह मेरे को कोई रास्ता निकल सकता है। अभी देखो ये हॉस्पिटल जब तक चलती रहेगी, यहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे, इनके बुजुर्गों को उसका सवाब रहेगा। और अजीज सेठ साहब मेहनत से बनाए, अजीज सेठ साहब को ताक़यामत तो इनको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। मैं यही चाहता हूँ कि मैसूर के जितने भी जो भी इस हॉस्पिटल में इनिशियली जो इरादे से हॉस्पिटल पर शुरू किए, उन सबको इसका सवाल प्रॉब्लम है। मुतौलियों को क्या बता दिए और बोर्ड वालों को क्या बता दिए लोग कि मैं दूसरे हॉस्पिटलों के साथ में ये हॉस्पिटल उनको दे दिया हूँ, मैं पैसा लेके उनके साथ में ये अरेंजमेंट करके उनको हॉस्पिटल दे दिया बोल के ये लोग को गलतफहमी है। वक्फ बोर्ड से लेके इन लोग को लेके लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं। मुझे स्टेटस को मिला हुआ है हाई कोर्ट से, इसलिए कि भाई मैं हॉस्पिटल चलाऊँ, मैं अपना उनका वो उनकी लोग मुझे इंटरफेयर नहीं हो सकते, लेकिन इंटरप्रेट करके कर रहे हैं। अभी क्या बात कर सकते हैं हम लोग इस बात को, क्योंकि लूज टॉक करना तो आसान ही है। और मैं यहाँ पे कोई गंदा काम करने गलत काम करने के लिए ये नहीं किया हूँ। ये हॉस्पिटल हम लोग सिर्फ डॉक्टरों के लिए आउटसोर्स किया हम लोग। हमारे पास देखो यहाँ पे हॉस्पिटल, हमारी जो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे हम लोग किसी को दे नहीं सकते, आउटसोर्स इसलिए किया हम लोग, हमारे पास डॉक्टरों का मतलब ये नहीं है, पूरा सपोर्ट ग्रुप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारा, और नर्सेस आईसीयू की टीम, इसके लिए सब एक्सपर्ट आदमी लोग। सर क्या कानून में ऐसा ऑप्शन है कि आप आउटसोर्स ये कर सकते हैं? आउटसोर्स किसी भी, अभी जैसे भी मेरे पास कोई डॉक्टर आता है, कोई पेशेंट को देखने के लिए आता है और देख के चला जाता कंसल्टेंट, वो आउटसोर्स ही है ना। अब ये कानून क्या है, आउटसोर्स का मतलब क्या है, जैसा मैं आपको कोई काम दिया, ये काम आप मेरे लिए करके दे दो, आप करके दिए तो उसका मतलब आउटसोर्स दिया नो जी। मतलब ये नहीं हुआ कि मैं चलो मैं आपको बेच दिया, आपको लीज दे दिया, आपको रेंट में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। या ना किसी को रेंट में दिए, ना हम किसी को लीज भी दिए, ना किसी को ये करके दिया हम लोग। हॉस्पिटल हमारी मैनेजमेंट भी ऐसा की मैनेजमेंट है, बीबीए के मैनेजमेंट में हम लोग तो ये पैसा किए कि भाई जो भी मिलके है मिलके करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे वेंटिलेटर की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, टीम की जरूरत है, एम्बुलेंसेस की जरूरत है। अब ये सब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, इसको पैसे की जरूरत है। मेरे पास पैसा इतना नहीं है। अब सब मिल के आए, बोले चलो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, आप मिल के सब कुछ करो। मैं ऑलरेडी इतना पैसा लगाया और फिर फायदा लगा कि क्या फायदा। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि भी चलो यहाँ पे हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं, वो डॉक्टर लोग आए हम लोगों को मदद करने के लिए, हमको उनकी मदद लेना चाहिए हम लोग। अब उनको क्या है, उनके दिल में हम मोहब्बत पैदा करना, खौफ नहीं। जिस तरीके से लोग आज सुबह में किए एटीट्यूड, इससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा होता है। ये खौफ से अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा। मैं इनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी हॉस्पिटल को अच्छी तरह चलने दीजिए, भाईचारे से मिल के काम करो।
कोई भी तकलीफ है मेरे से आओ, मेरे मिलो, मिल के हम लोग इंशाल्लाह बैठेंगे, बच्चा सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तनवीर सेठ तो हमारे साथ बहुत बेचारे कोऑपरेट करके है हर मामले में, तो कभी ये नहीं किए वो। यहाँ तक कि तनवीर सेठ एक बार मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दुबई से फोन करके ऑफबोर्ड में बात की हो। कोऑपरेटिव है, मैं हमसे कुछ नहीं, हम लोग लूज टाक करते हैं, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, समझ में। तो ये फिर इतना ही है कि मेरी आखिरी इल्तिजा यही है कि हम सबको, ये डॉक्टरों की टीम को, हम क्योंकि अभी हम डॉक्टर नहीं है, हम तो हॉस्पिटल में 24 घंटे में बैठ नहीं सकता, तो इसके लिए डॉक्टर लोग रहेंगे, मैनेजमेंट रहेगा, मैनेजर रहेगा, सारे पूरे आप लोग कोऑपरेट करके इनको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सर।